Hello students, class 9th. This is Samuel sir, your English teacher. Today, before to start in next topic, welcome you once again in my video. And my intention is only to make you more understand in some way. So that's why today, as much as possible, I will make you understand. My focus is only that. So let's get started on the topic that we have uh, pended, which we discussed in last video. It was uh, pending, and that's why today we will continue that related pending topics. So that's why we have nouns. Let me clear you. In earlier classes, you have already studied about the noun. It's the name of person, place, or things. We say that is noun for a particular person. But here, little different. That is little, just you can say slightly different. थोड़ा सा हल्का सा अंतर है. क्या है? We are talking or discussing on the topic of nouns, not noun. Nouns. So just let us see what is the group of words are saying. क्या कह रहा है? Nouns are naming words. They are names of anything, that is persons, place, quality, action, state. Don't get confused. Nouns, we are not talking about the noun. So maybe there will be a little mixtures. That's why topic wise we will discuss on it. See, first let me clear you. Nouns are naming words. Nouns are naming words. Nouns एक naming words को बोला गया है. They are names of anything. कुछ भी, किसी का भी वो नाम हो सकता है, चाहे वो either it is persons, place, quality, action or state. तो for an example here, person Ravi, student. Don't get confused. There is a student and Ravi. There is a special name, but here is a common name. So that's why it is written nouns. So just for this, you just make it keep in your mind person, Ravi, student. Just for a while, you just थोड़ी देर के लिए इतना ही समझो. Place, Delhi, city. Quality, beauty, honesty. State, anger, sorrow. Action, laughter, respect. These all are actions. So why it is little bit mixer with one another? एक दूसरे के साथ क्यों थोड़ा सा मिक्सर है? So because of that condition, nouns stand for. इसीलिए तो nouns इसके कारण से ये है. तो इसको और समझने के लिए लेट मी टेल यू दैट काइंड्स. तो यही चीज क्या है? काइंड्स ऑफ नाउन के कारण है. इसीलिए रवि और स्टूडेंट मैंने बोला. तो और समझने के लिए लेट मी क्लियर यू. नाउन्स आर जनरली 5 काइंड्स. इसीलिए नाउन 5 प्रकार के होते हैं. तो दैट्स वाई नाउन्स इट इज रिटन इन प्लूरल फॉर्म. तो 5 काइंड्स क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटरल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. So these are the 5 types of nouns that we are used in our day-to-day life. So one by one, let me make you understand. So here, well, you see here, you all see here, proper noun. What is proper noun? Proper noun which denotes one particular person's, place, things or animals. Proper noun जो दर्शाता है एक विशेष, किसको? पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स को. तो पर्सन में जैसे मान लो जॉन इमदाद, प्लेस में दार्जिलिंग. सो हेयर यू कैन सी द डिफरेंस. रवि, स्टूडेंट.
here John Imdad. There is a special name, but here is the special name is only there is one, Ravi. But student, it may be for girls, boys, but there is no need to mention the name. That's why it stands for the in a common sense, or you can say in common manner. Students, there is no need to mention the persons, either girls or a boy. इसमें किसी लड़का और लड़की का नाम लेने का जरूरत नहीं है, बिकॉज बोथ आर स्टूडेंट्स. उन दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों स्टूडेंट है. दैट्स वाई इट इज लिटिल मिक्सर रवि एंड स्टूडेंट्स. तो इसीलिए यहाँ पे मैं आपको अलग अलग क्यों इस प्रकार का है नाउन्स करके प्लूरल बोला है, तो यही कारण से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हैं कि जॉन इमदाद इट्स अ स्पेशल नेम ऑफ समवन, एंड प्लेस दार्जिलिंग इट्स अ स्पेशल नेम ऑफ वन ऑफ द प्लेस, है ना. तो हियर लेट्स सी वन एग्जांपल. इमदाद इज ए ऑनेस्ट बॉय. इमदाद क्या है, एक ऑनेस्ट बॉय है, एक ईमानदार लड़का है ना. तो इसमें क्या चीज है, प्रॉपर नाउन. दिस वन इज ए प्रॉपर नाउन, यानी कि इट इज द नेम ऑफ स्पेशल, इट्स कॉल्ड अ स्पेशल नेम. हियर इज एम्फसाइज्ड अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन्स who is honest, and honest boy is who, Imdad, and that's why it is called a proper noun. इसीलिए इसको proper noun कहा गया है. One more thing you have to remember that whenever in a sentence proper nouns will come, always its first letter should be capital. उसका लेटर हमेशा कैपिटल होता है. By this also we can identify it is a proper noun. Is that clear? Next one, common noun. A common noun is a name that gives to all persons, places or things etc. of the same kind. देखो, see, same kind it is something जो कि सभी को एक जगह में लेकर उसको सेम काइंड, यानी कि एक वर्ड में उसको ले जा रहा है, यानी कि दैट मीन्स दैट इज कंक्लूडेड इन ए वन वर्ड which is called common noun. How it is? ये किस तरह से? Let me clear you. A common noun is a name that gives to all person. यानी कि सभी लोगों में एक कॉमन नाम जो दिया जाता है, चाहे वो जगह का हो, चाहे वो किसी चीज का हो, चाहे वो व्यक्ति का क्यों ना हो, है ना. एक नाम दिया जाता है जो कि सभी के लिए वो नाम सभी के लिए वो नाम एक समान होता है. That is called common noun. So let me clear you. Boy, girl, elephant, river, etc. So boy, girl, elephant, river. It's a common noun. Boy is a whoever we will call boy, है ना. किसी को भी हम लोग बॉय बोल सकते हैं. इमदाद चाहे जॉन. अगर क्लास में हम लोग हैं तो हम लोग अगर if I say stand up इमदाद, only the particular boy Imdad will stand up, but rest of the boys will be remain seated. वो बैठे रहेंगे. क्यों? Because I call the special name among the boys Imdad. तो इमदाद खड़ा होगा, बाकी बच्चे बैठे रहेंगे. तो अगर मैंने बोलता boys stand up, तो all boys will get stand up on my command, है ना. तो सभी बच्चे उठ जाते हैं. Why it is so? Because boys is a common among all. तो इसीलिए boy क्या है, कॉमन है. इट्स अ कॉमन नेम. तो गर्ल भी वही है, एलिफेंट भी वही है, रिवर भी वही है. देयर आर सो मेनी रिवर्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना. बट दे हैव द स्पेशल नेम, है ना. फ्रॉम दैट स्पेशल नेम दे आर डिवाइडेड फ्रॉम, और दे आर सेपरेटेड फ्रॉम everyone. सभी से वो अलग हो जाता है. They are separated among all rivers. So that's why we call proper noun, and whereas we will say common noun. Well, move to the next topic. Collective noun. Collective noun which denotes a number of persons, animals, things, etc. taken as
one, or you can say also taken as whole. We can say that. So collective nouns, in that through these words we can understand collect, that is to collect, यानी कि that means to assemble in a one, to assemble in a one, एक जगह में जमा करना, और जमा करके उस पर्टिकुलर, टू मेंशन द पर्टिकुलर नेम्स ऑफ दैट ग्रुपिंग ऑफ सच थिंग्स. तो उसके ग्रुपिंग ऑफ सच थिंग्स को हम लोग असेंबल करके अगर उसका एक नाम बोलते हैं तो वो नाम को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं. तो दैट्स वाई which denotes a number of persons. See here a number of person, यानी कि बहुत सारे, दो से ज़्यादा, more than 3, 4, 5, 6 etc etc. When we assemble these group of number of persons or animals or things, then we denotes one name, or we can say we refer in a whole as a one name, that is called collective noun. And what is that one name is called? See, in every groups of persons, in every groups of like persons, animals and things, they have their particular names. सबके अलग अलग ग्रुप के नाम होते हैं. तो you cannot denote the for a group of words, for a group of numbers of persons or a animals or a things, उसको एक ही नाम से हम लोग नहीं बोल सकते उनके झुंड को. तो सभी झुंड का एक अपना अपना नाम है. That's why we can say that in an example, it is, there is several example I have I have written here. Army, crowd, swan, etc. These are the name of the group of animals. Okay, and here one of the example, a crowd of people, यानी कि इंसान के झुंड को क्या बोल सकते हैं? इंसान के बहुत सारे 4, 5, 6 या 7 या 10 आदमी के झुंड को क्या बोलेंगे? उसको क्राउड बोलेंगे. यानी कि इंसान के ग्रुप के, उसको भीड़ को हम लोग क्राउड बोलते हैं. तो दैट्स वाई we say that one word that we denoting for a person's groups that we call crowd, उसको हम लोग crowd बोलते हैं. उसी प्रकार से चींटियों के झुंड को क्या बोलेंगे? an army of ant. तो इस प्रकार से हम लोग several names that we mention of a different groups of creature, अलग अलग प्रकार के क्रिएचर के हम लोग ग्रुप को, झुंड को अलग अलग नाम देते हैं. उसी नाम को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मैटेरियल्स नाउन. मैटेरियल्स नाउन इज द नेम ऑफ सम मैटेरियल्स और सब्सटेंस ऑफ विच अ थिंग इज मेड. यानी कि मैटेरियल्स नाउन उसे बोलते हैं जो चीज, द थिंग्स दैट इज मेड अप ऑफ. किस चीज से वो चीज बना है, वो चीज को ही हम लोग, जिस चीज से वो बना है उसको हम लोग मेटेरियल्स नाउन बोलते हैं. जैसे हम लोग मेटेरियल नाउन्स, जैसे गोल्ड हो गया, वुड हो गया, आयरन. इन आवर डे टू डे लाइफ देयर आर सेवरल थिंग्स दैट वी आर यूज्ड दैट इज मेड अप ऑफ आयरन, वुड और अ गोल्ड, है ना. ये गोल्ड, वुड, आयरन से बना हुआ बहुत से चीज़ें हम लोग यूज करते हैं. तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटेरियल्स नाउन. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ए रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड. एक रिंग है, अंगूठी है, किससे बना है? गोल्ड से बना है. एंड गोल्ड इज द मेटेरियल नाउन दैट द रिंग इज मेड ऑफ, जिससे कि रिंग बना है, अंगूठी बना है. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड मेटेरियल्स नाउन. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए स्टेट, क्वालिटी और एक्शंस. स्टेट, क्वालिटी और एक्शन. सी इट इज लिटिल डिफरेंट among the others topic. ये थोड़ा सा अलग हटके है. It is a special topics that it needs some special kinds of feelings and thoughts which are totally related with that. और ये जो पूरी तरह से related है, precisely it is related with that, है ना. तो जैसे स्टेट, क्वालिटी और एक्शन. स्टेट का मतलब होता है अवस्था, क्वालिटी का मतलब होता है गुण, और एक्शन का मतलब होता है हाउ द वर्क्स इज डन,
किस तरह से वो किया गया है, इन व्हाट एक्शन इट द वर्क इज डन। तो वो उसको बारे में, जैसे कैसे, जैसे स्टेट हो गया, स्टेट पीस चाइल्डहुड, यानी कि वो किस अवस्था में है, चाइल्डहुड यानी कि बचपन, पीस शांति की अवस्था में, चाइल्डहुड के यानी कि बचपना का अवस्था, है ना। क्वालिटी क्या होगा, गुडनेस विजडम, गुडनेस का मतलब होता है अच्छाईपन, विजडम का मतलब बुद्धि, एक्शन मर्सी और विक्ट्री, वो काम किस तरह से, हाउ द वर्क इज डन, है ना, विक्ट्री उसमें आता है ना। जैसे मैंने, हम लोग को उस खेल में विक्ट्री मिला, विजयी मिला, तो दैट इज द वर्क दैट इज कंप्लीटेड बाय, है ना, समहाउ, एंड विच इज स्टैंड फॉर द विक्ट्री, है ना, जिसमें हम लोग को वो मिला। तो नाउ हाउ इट इज डन, किस तरह से ये किया गया है। दे कैनॉट बी सीन, देखो ऐसा चीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि हम लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन हम लोग टच कर सकते, टच भी नहीं कर सकते। सो दीज आर दीज सच टाइप्स ऑफ नाउन्स दैट वी कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये क्या है बोलने से, इनका अस्तित्व हम लोगों को नजर नहीं आता है, एग्जिस्टेंस वी कैन नॉट सी बट वी कैन फील इट। तो कैसे, ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज ऑनेस्टी, एक एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज लव, ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज ऑनेस्टी, उसके ईमानदारी के लिए उसको पुरस्कृत किया गया। अब ईमानदारी चीज दिखता है, कैन इट बी विजिबल, नहीं दिखता है, इट कैन नॉट बी विजिबल, बट ईमानदारी को हम लोग महसूस करते हैं, यानी कि द वे ऑफ डूइंग द पर्सन्स, है ना, द वे ऑफ द पर्सन इज डूइंग, जिस ढंग से वो कर रहा है, एंड द एक्टिविटीज दैट वी सीन while doing the persons or a person's performing his task, and through that we feel it, we can feel it, हम लोग उसका फील कर सकते हैं। तो that's why once we get feel it, जब एक बार हम लोग देख लेते हैं तब हम लोग को मालूम चलता है कि वो आदमी ये काम को ईमानदारी से करता है। तो that's why abstract noun is stand for that। थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए, लेट मी क्लियर यू मोर हाउ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज फॉर्म, किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम कॉमन नाउन, एक चीज याद रखना है कि कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, एडजेक्टिव नाउन से और वर्ब नाउन से, है ना, वर्ब से, एडजेक्टिव एंड कॉमन नाउन से आपका फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। दीज थ्री, common noun, adjective noun and verbs noun, from these only nouns that the abstract noun is formed, बनता है ना। कैसे, जैसे common noun, जैसे slave हो गया, slave यानी कि दास, कोई भी हो सकता है दास। इन अर्ली पीरियड्स आदमी लोग गुलाम जिसे बोलते हैं, गुलाम था, है ना। स्लेव से अब क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया स्लेव, स्लेव से स्लेवरी हो गया। ब्रेव है, एडजेक्टिव ब्रेव से ब्रेवरी हो गया। डिवाइड है, वर्ब डिवाइड, डिवाइड से डिवीजन हो गया। सो इसमें क्या चीज, एक चीज है, हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि ये किस तरह से, ये तो आपको मालूम कि यू अंडरस्टूड दैट द फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बाय कॉमन नाउन, एडजेक्टिव नाउन एंड वर्ब नाउन। और आपको इजी करने के लिए वी कैन मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बाय एडिंग सफिक्स। डू यू अंडरस्टैंड सफिक्स? Suffix, after the words it comes, some of the words are added with that given words at the last of the end of the words, that is called suffix। जो आखिरी में, शब्दों के आखिरी में लगता है कुछ लेटर्स, शब्दों का 2 या 3 या 4 लेटर्स एडेड हो जाता है, तो वो शब्दों के पीछे, उसको सफिक्स बोलते हैं। तो सी एज, शॉर्ट से क्या हो गया, शॉर्टेज, देखो लास्ट में एज लग गया, लास्ट में एज। ACY से प्राइवेट है, प्राइवेट दैट मीन्स क्या हो जाएगा, प्राइवेसी, ACY। तो इससे क्या हुआ, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। तो इन दिस वे द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग दीज सेवरल सच वर्ड्स, सच लेटर्स आर गिवन। और ये मेंट हो गया, नेस्ट हो गया, सीप से सन,
ends, tie, y, th, ion, ends, ty. Once these words get added with the given words, it becomes a abstract noun. जो भी words ये लास्ट लेटर में इससे एंड होता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है. दिस इज द इजी मेथड दैट यू कैन आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. थैंक यू स्टूडेंट्स. I will talk to you in another video. Pronoun and adjective we will discuss on the next videos. Till then, goodbye. Take care.